اور یہاں سے ہم آغاز کریں جہاں ایک بڑے تار کا ذکر ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ حضرت داؤد کی سلطنت کے 20 سال یا 3 سال کا کال جو ہے، یہ قحط جو ہے یہ برپا ہوا ہے۔ لیکن خدا کا کلام اس پس منظر میں بڑی گہری باتیں مجھے اور آپ کو بتاتا ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جبونی جو ہے یہ ملک موت کے اسفل باشندوں میں سے تھے، اور انہوں نے یشوا کے دور میں بڑی چلاکی کے ساتھ جب یشوا اٹیک کر رہا تھا اور اسے خدا فتح پر فتح دیتا چلا جا رہا تھا، تو جبونیوں نے سمجھا اور جان لیا کہ اگر ہم نے یشوا کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا تو یقینی طور پر ہم سب بھی ہلاک ہو جائیں۔ تو انہوں نے یشوا کے پاس جا کر عرض کی، التجا کی کہ انہیں مارا نہ جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے، اور بہت سی باتیں ایسی تھی جو انہوں نے یشوا کے سامنے بیان نہیں کی، اسے کھولا نہیں۔ لیکن ان کی منت زاری اور ان کی ریکویسٹ پر یشوا نے ان کے ساتھ ایک عہد باندھا، ایک قسم ان کے ساتھ کھائی، اور وہ یہ تھی کہ ہم آپ کو ہلاک نہیں کریں، وہ اس کی رعایا میں کام کریں گے، وہ ان کے غلام بن کے رہیں گے، اور وہ ان کی محافظت اور نگہبانی بھی کریں گے۔ اور یہ جو عہد ہے یہ آپ کو یشوا کی کتاب کے 9ویں باب کی 15 سے 21 آیات کے اندر کیسے باندھا گیا، یہ سب کچھ آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب سول بادشاہ بن گیا تو سول بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو تو اس پر دیتا ہی چلا جا رہا تھا، لیکن جبونیوں کی شاید بہت سی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ جائیداد کی وجہ سے حملہ کیا گیا یا کوئی اور ریزن تھی جس کی وجہ سے اٹیک ہوا، بٹ سول نے جبونیوں پر حملہ کر دیا، اور جب اس نے اسے حملہ کیا تو میں اس لیے جائیداد لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ اس کی تاریخ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جبونیوں کا جو علاقہ ہے یہ سول کے دارالحکومت اور آبائی شہر جبا کے بالکل قریب تھا، تو ممکن یہ تھا کہ جو قریب جگہ تھی شاید اس نے سوچا جانا کہ وہ اپنے نظام کر دے، اور اس حوالے سے جب انہوں نے اس کو روکنے یا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو سول نے ان سبوں کو قتل کر دیا، بڑی تعداد میں جبونیوں کو قتل کر دیا گیا۔ سول کے اس قتل کی وجہ سے یشوا کے ساتھ وعدہ ہوا جبونیوں کا وہ عہد بھی ٹوٹ گیا، اور خاص طور پر جو خدا کے نام کی قسم لے کر انہوں نے عہد باندھا تھا اس کی بڑی تذلیل بھی ہوئی۔ اب اس عہد کے ٹوٹنے پر، اس قسم کے ٹوٹنے پر خدا بنی اسرائیل سے سخت ناراض ہو۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سول کا گناہ بنی اسرائیل کے لیے ایک لعنت بن گیا۔ خدا ناراض ہے، اور جس کی وجہ سے خدا نے بنی اسرائیل کے لیے بارش کے دروازے بند کر دیے۔ اب بارش ہونا بند ہو گئی، کھیت ہرے بھرے خشک ہونا شروع ہو گئے، کال قحط برپا ہونا شروع ہو گیا، اور لوگ خوراک کے لیے مارے کرنے لگے، انہیں خوراک میسر نہیں ہو رہی۔ کل دوپہر کی خبروں کے اندر اگر آپ میں سے کسی نے جانا ہو تو ہزاروں کے حساب سے آٹے کی وہ بوریاں جنہیں ریت کے اندر پھینک دیا گیا، ریت اور آٹا مکس ہو گیا، اس کے باوجود وہاں سے لوگ، بچے، عورتیں اس ریت ملے آٹے کو اٹھا کر کھانے پر مجبور اور بے بس میں دکھائی دیتے۔ خوراک کی لائنوں میں اس قسم کی بھگدڑ مچ گئی کہ بہت سے لوگ اسی جگہ مر گئے۔ جب خوراک کی قلت شارٹیج ہوتی ہے تو اس وقت خدا کی نعمتوں اور برکتوں کی عزت اور قدر کا احساس ہوتا ہے۔
यिर्मयाह कहते हैं कि ये पानी को तोड़ कर पिएंगे, ऐसा मैं वक्त लाऊंगा, रोटी का आशा तोड़ डालूंगा, ये ढूंढेंगे, ये चलाएंगे, ये मांगेंगे, लेकिन इन्हें कुछ मुयस्सर ना होगा। खुदा ने ऐसा काल बर्पा कर दिया कि उसके बाद दाऊद भी खुदा के सामने झुकने और रोने पर मजबूर हो गया। पर यहाँ एक हैरान कुन बात मेरे और आपके सामने आती है, वो ये बहुत बड़ा गुनाह किया था साउल ने, लेकिन हैरान कुन बात ये है कि ये काल बर्पा हुआ दाऊद की सल्तनत में जाकर। खुदा ने इस सजा को, इस काल को साउल की उसके हुकूमत के सालों में क्यों बर्पा न किया, और ये काल बर्पा हुआ दाऊद की हुकूमत के दिनों के अंदर। अब खुदा ने ऐसा क्यों किया ये खुदा ही जानता, लेकिन एक बात समझ आई, और वो ये वास्त गुनाह के जुल्म को मिटा नहीं सकता। सजा अगर आप और मुझे फौरी तौर पर नहीं मिली तो इसमें पुरुमीद होने की जरूरत नहीं है, या ये फख्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरी सजा का वक्त टल गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा खुद पैर बख्श और नमहात तय करता है, लेकिन बाइबल का फैसला है सजा मिलकर रहती है। तो साउल का गुनाह बनी इस्राएल के लिए एक लानत की सूरत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से काल और कहत बर्पा हुआ। जब हमारी नीयतें खराब होती है, हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारियां नहीं होती है, तो उस वक्त हमारे घर की बरकत और बख्शिशें नाशुक्री में बदल जाती है, उनमें कमी पैदा हो जाती है, शॉर्टेज पैदा हो जाती है, बरकत जाती रहती है, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती, हमें तसल्ली नहीं मिलती। इसलिए चूंकि खुदा के रहम और तर्स का हाथ जो हमें मुतमईन करता है, सेटिस्फाई करता है, वो हमसे हट जाता है। और यहाँ तो हालात ऐसे बन गए कि अब खुराक मुयस्सर नहीं हो रही। दाऊद घुटनों के बल खुदा के सामने हुआ, और वो खुदा की हजूरी में झुका, उसने खुदा से दुआ की, ऐ खुदावंद मुझ पर ये भेद आशकारा कर, ये ऐसा क्यों है। खुदा ने उसे जवाब दिया कि ये साउल के जबूनियों को कत्ल करने की वजह से उसने वो अहद तोड़ दिया है, उसने वो अहद तोड़ दिया था जो यशवा के साथ बांधा गया था। जबूनियों ने कहा दाऊद से यशवा के साथ किया हुआ अहद इन्होंने तोड़ दिया। यशवा ने कहा था हम तुम्हारे रखवाले हैं, तुम पर अटैक नहीं होने देंगे, ना करेंगे। इसलिए हमारे बीच में और साउल के बीच में बात पैसे की नहीं, बात सोने चांदी की नहीं है, बात अहद को तोड़ने की है, जिसकी वजह से खुदा की तरफ से कर्ज और लानत इस्राएल पर जो है वो नाज़िल हो चुका। दाऊद ने पूछा मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम बनी इस्राएल की मिरास के लिए दुआ करो। जब सच्चे अहद टूटते हैं तो कर्ज जाहिर होती है। याद रखिए, शादी ब्याह भी एक अहद है और मजबूत अहद है। जब कोई इसमें बेवफाई करता है, जब कोई इसे तोड़ने की कोशिश करता है, तो याद रखिए कि वो लानत के ज़िम्मे में वो फैमिली आ जाती है। ये ऐसा अहद था जो उनके बीच में था। हर वो फैमिली जो खुदा के बेटे और बेटियां होने के अहद को, उसके चढ़ाव को, उसकी मेहरबानी और उसके एहसानों को हकीकत जानकर उस अहद को तोड़ते हैं, वो लानत के ज़िम्मे में आ जाते हैं। और आज लाखों लाख ऐसे लोग जिन्होंने यीशु को बेच दिया, जो खुदा की बख्शिश से दूर बने रहते हैं, उन पर हमेशा के लिए लानत कर दी जाती है। इस बात को आज कलीसिया को और मुझे और आपको समझने की जरूरत है। हज़रत दाऊद ने मिन्नत की, पूछा अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम बनी इस्राएल की मिरास को क्या दो, उसे उसके लिए दुआ को बरकत चाहो। वो समझ गया था कि बनी इस्राएल के ऊपर ये काल इस वजह से आया
और अगर आपकी बरकतें रुक गई हैं, आपकी सारी काबस और आपकी स्ट्रगल के बावजूद हरियाली नहीं आ रही है, घर के अंदर खुशी और शादमानी नहीं है, दुआ के बावजूद, आपकी मेहनत के बावजूद, आपकी स्ट्रगल के बावजूद, आपकी मिन्नतसारी के बावजूद, आपके रोजों के बावजूद, तो समझे किसी जगह अहद को टूटने का आगाज हुआ है। सोचो विचार करना शुरू करो इससे पहले कि काम और मुकम्मल तबाही आए। मेरे हिस्से पर लानत हो चुकी है। दाऊद ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मैं सोचता हूँ यहाँ वो 4 काम कर सकते हैं, क्योंकि बेबस था हजरत दाऊद इस जगह। उसने इकरार किया तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए दूंगा। पहली मुझे नजर आता है वो गुलाम थे और वो आजादी की डिमांड कर सकते हैं, हमें आजाद कर दिया था। दाऊद ने कहना था मैंने तुम्हें आजाद किया, क्योंकि वो उस कर्ज को हटाना चाहता। अगर इस जगह वो ये कहते कि साउल के घराने के साथ साथ हमें फला शख्स भी चाहिए, दाऊद को भी दे देता, पर नहीं किया। अगर वो कहते इतना सोना चांदी पैसा जमीन जायदाद में दी जाए, दाऊद ने दे देनी थी, क्योंकि सारे मुल्क पर काल और काल इसी वजह से बता रहा। पर शाबाश है उन जबूनियों पर भी। उन्होंने कहा साउल ने हमारी नस्ल को मिटाने के लिए हमला किया, ये खून का बदला खून ही से तय होगा, इसलिए साउल के घराने में से 7 लोग हमारे सपुर्द कर दिए जाए। कितने? 7 लोग हमें दिए जाए और हम उसे खुदा की अदालत के अंदर लाते हुए खुदा के लिए इन्हें लटका दें। अच्छा, यहां दूसरा बड़ा अहम काम किया उन्होंने कहा कि हमारे हवाले किए जाए कि हम उन्हें लटकाएं। ये नहीं कहा दाऊद 7 लोग पकड़ और उन्हें लटका दे, ये नहीं कहा। क्यों नहीं किया? इसलिए कि उनके नजर में यह था अगर इस काम के एवज कोई बदी दी आए तो ये हम पर आए, ये दाऊद उसके खानदान पर आए। इसलिए उन्होंने कहा ये हमारे हवाले किए जाए। अब दाऊद ने कोई ताखीर नहीं की है और दाऊद ने कहा 7 बंदे तुम्हारे हवाले कर दिए जाए। अब हजरत दाऊद सोचो विचार करने लगा कि वो 7 बंदे कौन से उसके सपुर्द किए जाए। साउल के घराने में एक के साथ उसका अहद था तुम्हारी नस्ल को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। वो कौन था? जोनाथन। तो डेफिनेटली वो जोनाथन के खानदान में से कोई शख्स भी देना नहीं चाहता, क्योंकि वो अहद तोड़ देता जो उसने जोनाथन से बांधा था। तो उसने सबसे पहले 2 लोगों का इंतखाब किया और वो 2 लोग थे। साउल की हर जो रस्पा थी ये उसके 2 बेटे, इसमें से एक का नाम था अरमोनी और दूसरे का नाम था महबूस। अच्छा, याद रखें ये वो महबूस नहीं है जो जोनाथन का बेटा था, ये रिस्पा के 2 बेटे, और ये रिस्पा साउल की हरम थी, ये उसके 2 बेटे। उसने 2 हलाक की और 5 जो लोग हैं उसने वो दिए मीकल के बेटे। साउल की बेटी मीकल, उसके 5 बेटों को उसने। अच्छा, यहाँ लफ्ज लिखा है मीकल, लेकिन तारीखी तौर पर लोग मानते हैं ये मीकल के बेटे नहीं थे, ये मीनम के बेटे। क्योंकि जब आप पहली सैमुएल की किताब उसका 18वां बाब उसकी 19वीं आयत पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि महलाती इद्रिएल से मीनम ब्याही गई थी, मीकल नहीं ब्याही गई। इस हवाले को पढ़ लीजिए। तो इसलिए मीकल के बारे में तो हम जानते हैं वो मरते दम तक बेऔलाद रही। तो 5 बेटे उसके और 2 रिस्पा के, कितने हुए? 7 बच्चे उनके हवाले जमा कर दिए। उन्होंने उसे ले जाकर पहाड़ की चोटी पर लटका दिया या फांसी दी। यहाँ लिखा है नामी आयत में 21वें बाब की नामी आयत में पहाड़ पर खुदा उनके रसूल लटका दिया। अच्छा, इसमें याद रखें रिस्पा के 2 बेटे, सुनिए जरा गौर से मेरी तरफ देखिए। उसके 2 बेटे और वो हवा में लटके हुए। रिस्पा ने क्या किया? उसने एक टाट लिया, उसका एक तंबू बना शामियाना टाइप का बनाया और उसने वहां लगा दिया। अब दिन और रात वो उन लाशों की हिफाजत करती है। दिन के वक्त कोई परिंदे
कोई परिंदे उन्हें ना नोच डाले, उससे बचाती है। और रात की तारीकी में वो दरिंदों से उसकी हिफाजत करती है। 7 लोग लटके हुए हैं, उनकी लाशों की बेहुरमती ना। उसने वहां डेरा लगा लिया, चंद लोग भी शायद उसके साथ होंगे जो इस बैर में शामिल। उसने तहैया कर लिया कि वो उस वक्त तक इन लाशों की, इन हड्डियों की हिफाजत करेगी जब तक कि आसमान से बारिश नाज़िल ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो 6 माह तक इन लाशों की हिफाजत करती रही, और कुछ लोग कहते हैं 2 हफ्ते तक उसने इन लाशों की बात। मैं कहता हूं ये 4 दिन की भी बात हो तो ये किस कदर खौफनाक किस्म की बात है कि जिसमें आपके अजीज, आपके बेटे लटके हुए हों और लाशें गल सड़ रही हो आपकी नजरों के सामने, और आप उनके पास बैठे। यह कैसी हौलनाक किस्म की बात। अब इस तरह से हुआ जब हजरत दाऊद को इस रिस्फा के बारे में, उसके इस अमल के बारे में पता चला तो वो रिस्फा से बहुत मुतासर हुआ। उसने कहा कि इसने साउल के खानदान के लिए क्या जबरदस्त कुर्बानी दी। तब उसको याद आया कि 2 लोगों की लाशों को बेगुनाही के साथ दफन किया गया है, और वो थे साउल और उसका बेटा योनातान। हजरत दाऊद ने फौरी तौर पर लोग बजवाए और उस राख के नीचे से जहां साउल की हड्डियां और योनातान की हड्डियां दफन थी, उनको वहां से निकाला, और 7 लोग वो जो लटके हुए थे उनको भी उतारा। ज़ाहिर का जिस्म तो गांठ पड़ गया था, गोश्त वगैरह सब हड्डियां ढांचा ही लटक रहा, उनको लेकर तो उनके आबाई मकबरे में, उनके खानदानी मकबरे में, साउल के बाप कैस की कब्र में उन सब 7 को, उनकी हड्डियों को दफन। जैसे ही ये अमल हुआ, खुदा ने आसमान को खोल दिया और जोर से बारिश बरसना शुरू। खुदा की हजूरी में जब हम किसी अहद को बांध कर तोड़ते, इसी में आपकी याद रखिएगा मन्नत भी आती है। कई बार आप चर्च में बैठे बैठे आपके जहन में ख्याल आ जाता है फलानी चीज की कमी है, मैं खुदावंद मैं इसे तेरे घर में दूंगा, खुदावंद खुदा मैं फलानी चीज तेरे घर में दूंगा। चर्च से बाहर निकलते हैं, खुशहाल हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने मेरे सामने खुदा के घर के हवाले से बहुत सी मन्नतें मांगी, लेकिन आज तक वो मन्नतें नहीं पूरी की गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब आप मन्नत माने जरा ध्यान के साथ समझ कर माने, जोश में आकर ना काम करें। जब तंगी की तलवार लटकी होती है उस वक्त हम बहुत सी बातें खुदा के सामने करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन फिर खुदा का गजब हम पर नजर होता। इसलिए दाऊद को इस बात का इल्म था कि ये कवार नहीं कर सकता जब तक कि खुदा के ऐन को दोबारा से बांधा न जाए, और उसने ऐसा ही किया। हजरत दाऊद ने मुल्क की बहाली और बरकत के लिए बहुत जबरदस्त ये काम किया, और मैं कहना ये चाहता हूं इस बहुत बड़े और जबरदस्त काम में रिस्फा का भी अदना सा हाथ, उसका भी इसमें उतना ही हिस्सा था जितना शायद हजरत दाऊद का। उसने अपने खानदान से, साउल के घराने से अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए, उस एहसास की हद तक जाने के लिए अपने बेटे पर कुर्बान कर। वो जानती है कि मेरे बच्चे बेगुनाह हैं, उसके बेटों का कोई गुनाह नहीं। वो अपने बाप की खातर कुर्बान हुए, उसकी खातर बलि पे चढ़े। गुनाह साउल ने किया था, और उसके खानदान में उसके बेटों में से 2 बेटे जो हैं उन्हें कुर्बानी दे दी। 5 अलग हैं और 2 अलग हैं। पर मैं रिश्ता की बात कर रहा हूं कि उसने कैसी कुर्बानी देकर कोई सिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं किया है, कोई फरार की राह नहीं की, अपने बेटों को भगाया नहीं, हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी नहीं, उसने ये सारा काम किया। इसलिए पहली शमूएल की किताब और दूसरी शमूएल की किताब के अंदर जो औरतें बरकत के ज़िम्मे में आती, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने बड़ा कमाल किया, उन औरतों के गिरोह में और हिस्से में रिस्वा का भी बात
اور اس کا بھی حصہ شامل ہوتا ہوا نظر آتا، جس میں سے آپ پہلی عورت ہے حنا، جس سے پہلی سمر کی کتاب کا آغاز ہوتا۔ اس کے بعد ابیچیل آپ کو ان دونوں بکس کے اندر نظر آتی، یہ زمانہ شناس بیٹی، بڑی دانشور قسم کی بچی۔ پھر اس کے بعد آپ کو تمر نظر آتی، تمر جو ہے اس نے سخت اور ان حالات کے اندر، آپ کو پتا ہم نے یہ سب سیکھا ہے اس کے ساتھ کیا کچھ، ان سارے حالات کے اندر بھی اس نے صحیح مشورہ دیا اور صحیح مشورے پر قائم رہا۔ پھر تقویٰ کی دانشمند عورت جس نے حضرت داؤد سے کہا ابھی سرون کے ساتھ اپنے مراسم کو بہتر بنا، یہ تیرے لیے اچھے اور بہتر ہوں گے، اس نے حضرت داؤد کو چیلنج دیا، کیسی دانشور عورت۔ اس کے بعد ابیل کی عقلمند وہ خاتون جس نے جواب کے ہاتھوں سے پورا شہر تباہ ہونے سے بچا دیا۔ چند سنڈے پہلے ہی ہم نے خدا کے کلام سے اس دانشمند بچی کے بارے میں جانا، جب جواب نے دیواریں گرانا شروع کر دی تھی اور اس نے کہا اس شہر کا کوئی شخص بھی نہ بچے، اس عورت نے دانشمندی کے ساتھ جو مطلوبہ شخص تھا اس کا سر باہر پھینک دیا اور حضرت داؤد سے کہا ہم سدا سے تمہارے، تاکہ داؤد سے کہنا ہم تمہارے وفادار ہیں۔ اس نے پورا شہر بچا دیا۔ اور اسی طرح سے رسپا بھی اس جگہ پر ان عورتوں میں ہے جس نے حضرت داؤد کو ایسا متاثر کیا کہ اسے یاد آیا کہ میں نے ان کی لاشوں کے بارے میں کبھی سوچا جو بالکل کے ساتھ دفنائی گئی۔ تبھی اس کے بعد اس نے اس کی اس عمل سے اس نے ان لاشوں کو لا کر اس کے خاندان جو ان کا خاندانی مقبرہ تھا اس کے اندر اسے دفن کیا۔ تو یہاں بچوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ صرف عقل مندی سے بولے گے الفاظ ہی کسی صورتحال کو تبدیل کرنے کی اہمیت نہیں رکھتے۔ کسی جگہ جب حالات خراب ہوتے تو دانش مندی سے بولنا اور دانش مندی سے بات کرنا بعض دفعہ حالات کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، یہ سچ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف دانش مندی سے بولے گئے الفاظ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کئی بار خاموشی سے خدا کے تابع رہ کر کیا گیا کوئی بھی کام سارے حالات کو بدل دیتا ہے۔ خدا کی مرضی کے تابع رہ کر خاموشی سے چلتے رہنا حالات کو کئی بار ایسا بدلتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے اس جگہ اس کا ملک بنی اسرائیل پر برکت کو واپس لانے میں جتنا داؤد کا ہاتھ تھا اتنا ہی رسپا کا بھی ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے۔ اس لیے بچوں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں ذرا غور سے اور سمجھ کے ساتھ یہ سوچ کر کریں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ خدا کی نظر میں ہماری جو اہمیت ہے، خدا کی حضوری میں جو استحقاق مجھے آپ کو دیا گیا ہے، وہ کہیں میرے کسی ذاتی عمل سے پامال تو نہیں ہو رہا، کہیں اس عہد کو ٹھوکر تو نہیں لگ رہی، کہیں وہ بے عزتی رسوائی کا باعث تو نہیں بن رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں نے آپ سے کہا وقت گناہ کے جرم کو مٹا نہیں سکتا ہے، دلیل ہو سکتی ہے، لیکن خدا جو عدل ہے وہ انصاف کرتا ہے۔ خدا اس کلام کی وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو کستا کیا۔